This is the second video for enzymes, and I have already discussed about the inhibition, about the specific effect of different things like pH. What are the effect of pH and temperature and substrate concentration over enzyme activity? And I have already told you about zymosome in previous video. What are the zymosomes? Actually, these are present in inactive form inside our body, and when they are activated, then they will perform their function. Okay, then I have already discussed about some important scientists, about two hypotheses like lock and key enzyme and induced fit enzyme. So you can watch the previous video and learn about them also. So in this video, in this scenario, or in this video, I will discuss about the classification, and something remains about the isozymes. So I will also discuss about the isozymes. Okay, so let's start with the isozymes. What are the isozymes actually? Isozymes, these are the things, yeah, these are the enzymes which have this different molecular weight and having same function. Okay, what I'm saying, that the isozymes are the enzymes which have different molecular weight and they perform same function. Like one of the example is lactate dehydrogenase, which convert the lactic acid into the pyruvic acid. Okay, so this type of enzyme contain two type of chain. One of chain is called as the light chain and second is heavy chain. On the basis of the number of heavy chain and light chain, this lactodehydrogenase will be subdivided into different parts, and these subdivision, like if I'm saying lactodehydrogenase 1, 2, 3, 4, these have different sites and having different molecular weight. Okay, so what I'm saying, that on the basis of the number of heavy chains and number of light chains, this lactate dehydrogenase is subdivided into different categories. Okay, and these are present on different location also. So let me tell you about the lactate dehydrogenase complex 1. Okay, it contain only one light chain and one heavy chain. Okay, so these are present in the heart and brain, as same as lactodehydrogenase 2, which contain the 3 light chain and 1 heavy chain, which are present in the reticulocytes. These are the when we जब हम क्या करते हैं, आरबीसी बन रही होती है, हिमेटोपोटिक जो हिमेटोपोटिक स्टेम सेल्स है, वहाँ से जो आरबीसी बन रही है उससे पीछे वाला जो स्टेप होता है ना, आरबीसी जिससे बनता है उसको बोलते हैं रेटिकुलोसाइट्स. सो एंड थर्ड वन इज योर लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज 3, which will contain 2 light chain and 2 heavy chain. Okay, and these are present in lungs. And 4, which contain 1 light chain and 3 heavy chain, are present in kidneys, and which contain 4 heavy chain also and no light chain, which we can also call it as lactodehydrogenase 5, which are present in liver and striated muscles. What are the striated muscles? Striated muscle are those muscles which are in our control. जो हम अपने, जैसे मैं हाथ हिला रही हूँ ना, तो ये मेरे कंट्रोल में है मसल सभी, इसीलिए मैं हिला पा रही हूँ. लाइक अवर हार्ट, तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो वो striated नहीं होती है फिर. ठीक है. One more example is your hexokinase and glucokinase. Hexokinase and glucokinase, these are also the isozymes and isomerase also. And isozymes is what? Their function is same. They hexokinase and glucokinase both will convert the glucose into glucose 6-phosphate. But these are present in the muscle cell and these are present in the liver, hepatic cell and beta cell of pancreas. Okay, so same, you can also say that different location but same function. Okay, so one more, some important things are, what are the fastest, what is the name of the fastest enzyme? That is your carbonic anhydrase, which are present inside your RBC. RBC वॉल के ऊपर जो होता है वो कार्बनिक एनहाइड्रेज जो है वो सबसे फास्टेस्ट एंजाइम है. एंड सबसे स्लोएस्ट है आपका लाइजोजाइम्स जो होते हैं बेटे. एंड जो सबसे लार्जेस्ट है वो आपका कैटलेज है. ओके, एंड स्मॉलेस्ट इज योर peroxidase, which are present inside your peroxisome originally. Okay, then let's come to the classification of the enzymes. Very important topics. So according to on the basis of the complexity, these are of the two types, simple and conjugated. जो सिंपल वाले हैं वो तो सिर्फ प्रोटीन से ही बने होंगे. ठीक है, जैसे लाइसोजाइम हो गया आपका, है ना, ये वाली चीज़ें. बट कंजुगेटेड आर दोज विच कंटेन प्रोटीन प्लस
अदर पार्ट, नॉन प्रोटीन पार्ट। एंड जो नॉन प्रोटीन पार्ट है उसे हम कोफैक्टर बोलते हैं, ठीक है। कोफैक्टर भी बोलते हैं, कोएंजाइम भी बोल सकते हो, प्रोस्थेटिक ग्रुप भी बोल सकते हो, वो हम आगे वो करेंगे, है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। सो व्हाट आई एम सेइंग दैट द कंजुगेटेड टाइप ऑफ एंजाइम्स कंटेन प्रोटीन एंड नॉन प्रोटीन पार्ट। नॉन प्रोटीन पार्ट इज ऑल्सो called as cofactor or coenzyme or prosthetic group. So if I'm taking only protein part of conjugated protein, so it is called as a apoenzyme, and if when I am adding both these are called as a whole enzyme। क्या बोला मैंने, जब मैं सिर्फ अगर प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट के सिर्फ प्रोटीन पार्ट को बोलूँगी, अगर कोई पूछेगा तो सिर्फ प्रोटीन पार्ट को क्या बोलते हैं, तो यू हैव टू नो दैट दिस इज कॉल्ड एज अ एपोएंजाइम। बट अगर बोलेंगे कि अगर एपोएंजाइम प्लस कोफैक्टर होगा तो उसे क्या बोलेंगे, सो यू विल नो दैट दिस इज कॉल्ड एज अ होलो मतलब पूरा होलो एंजाइम्स। ओके, सो अब ऑन द बेसिस ऑफ दैट कंजुगेटेड कोफैक्टर, जो कोफैक्टर है, कोफैक्टर इज योर व्हाट इज योर, दिस इज योर नॉन प्रोटीन पार्ट, okay, non protein part of the conjugated enzymes. So these are also further types, that is your organic and your इनऑर्गेनिक। अब जो ऑर्गेनिक है, ओके, उसमें क्या आएंगे, या फिर जो विटामिन से मिले होंगे हमें, किसी न किसी नेचुरल प्रोडक्ट से मिले होंगे, वो आपके क्या हो जाएंगे, ऑर्गेनिक में आ जाएंगे। नॉन ऑर्गेनिक में आपके क्या आ जाएंगे, कुछ आयंस वगैरह जैसे होंगे, जैसे जिंक हो गया, मेटल आ गया, कोई भी आयन हो गया, ठीक है, जस्ट रिमाइंड इट। ओके, सो जो ऑर्गेनिक होते हैं बेटे, वो भी आपके दो टाइप के होते हैं, दैट इज योर कोएंजाइम एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिस इज, सो यू हैव टू नो दैट जो ऑर्गेनिक होते हैं आपके दो टाइप के होते हैं, दैट इज योर प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड कोएंजाइम ग्रुप। if okay if the if the cofactor bounded with the protein part with tightly bonding, if they have the tight bonding, ठीक है, सो दीज आर कॉल्ड एज द प्रोस्थेटिक ग्रुप। अगर जो कोफैक्टर है ना, कोफैक्टर प्रोटीन पार्ट जो है आपका कंजुगेटेड एंजाइम का, उसके साथ टाइटली बॉन्डेज है, टाइटली पैक्ड है, तो उसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप बोल देते हैं, और वो परमानेंटली ही बाउंड होता है। जैसे आपका देखो, हीम इज अ प्रोस्टाग्लैंडिन इन द कैटलेज इज द लार्जेस्ट एंड प्रोक्सिजोम इज द स्मॉलेस्ट। सो जो आपका कैटलेज है और आपका जो प्रोक्सिजोम है वो आपका इसी कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। सो इसमें क्या हो जाता है आपका, देखो ये दोनों के दोनों कैसे हैं आपके, ये आपके दोनों के दोनों आपके प्रोस्थेटिक ग्रुप हैं, आपके परमानेंटली अटैच्ड होते हैं आपके प्रोटीन पार्ट से, ठीक है, कंजुगेटेड प्रोटीन में, ठीक है। सो इसमें क्या होगा, आपका कोएंजाइम्स आर लूजली बाउंड होते हैं, नॉट परमानेंट, ठीक है, एंड ये डिराइव्ड होते हैं हमारे लिपिड विटामिन से, और हमने ये देखना है कौन कौन से विटामिन से क्या क्या हमें मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोएंजाइम के बारे में तो बहुत है। व्हाट आर द कोएंजाइम, कोएंजाइम आर द कोफैक्टर्स विच लूजली बाउंड विद द एपोएंजाइम्स, ठीक है। एंड लेट्स टॉक अबाउट द इनऑर्गेनिक, फिर उसके बाद मैं बताती हूँ कोएंजाइम आपको जो अलग अलग विटामिन से कहाँ कहाँ से मिलते हैं, ठीक है। सो जो इनऑर्गेनिक पार्ट है आपका, उसमें मेटल आयंस होते हैं। जैसे अगर आपका जिंक मैं बोलूँ तो वो काम आता है आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेज में, ठीक है, जो मोस्ट अबंडेंट पाया जाता है आरबीसी में। और आपका जो जिंक आयन है वो अल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेज में भी काम आता है, जो आपका अल्कोहल को कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। एंड उसके बाद कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में भी आपका जिंक आयन काम आता है। तो ये क्या है आपका, ये आपका कोफैक्टर है। और बट कौन सा वाला, मेटल आयन, इनऑर्गेनिक वाला। वैसे ही आपका निकल है, वैसे ही आपका पोटाशियम है, जो आपका पायरुवेट काइनेज में जब आप पायरुवेट को तोड़ते हैं तब काम आता है। मॉलिब्डेनम है नाइट्रोजनेस एंजाइम में, आपका मैग्नीशियम है हेक्सोकाइनेज में। तो थोड़े बहुत यहाँ से कुछ याद कर लेना। एंड आफ्टर दैट लेट्स कम टू द coenzymes precursors, specifically talk about coenzymes. What are the coenzymes? These are the enzymes these are the cofactors which bound with the apoenzyme very loosely, and these are not permanent, and these are the precursor of these coenzymes are the vitamins, okay. So these are the vitamins which are which will help to form the कोएंजाइम्स, ठीक है। तो जो फर्स्ट है आपका वो विटामिन B3 है, B1 है, जिसको हम आपका थायामिन भी बोलते हैं। ये आपका बनाता है कोफैक्टर थायामिन पायरोफॉस्फेट। फिर जो सेकंड है वो आपका राइबोफ्लेविन होता है, जो आपका FAD फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड बनाता है, ये आपका कोफैक्टर है। फिर उसके बाद आता है आपका विटामिन B3, जिसको हम नियासिन बोलते हैं, वो आपका NADH निकोटामाइड भी बोलते हैं, इसको बनाने में हेल्प करता है। देन होता है B6 पायरोडॉक्सिन, जो आपका पायरोडॉक्सल फॉस्फेट बनाने में हेल्प करता है।
फिर उसके बाद होता है आपका विटामिन BH, और 7 में बोलते हैं जो आपका टेट्राहाइड्रोफॉस्फेट कोएंजाइम ए बनाने में भी हेल्प करता है। और जो आपका विटामिन B5 है वो आपका होता है पेंटाथोनिक एसिड, जो आपका कोएंजाइम ए बनाने में भी हेल्प करता है। ठीक है, सो यू हैव टू रिमाइंड दिस also. Okay, so these are the enzymes, conjugated enzymes.